Afternoon, everyone. I hope I am audible to you all. Am I audible to you all? Um, so, how are you all? Purnima, you are not audible if you are saying something. Okay, then I'll start with the introduction. I'll introduce Truely Technology to you all. So, Truely Technology Private Limited has a successful track record in the field of academia, research, training, recruitment, and job assistance since its inception in 2018. We also offer training and internship for all levels of the professional world. It starts from plus two level to a seasoned professional. We in Truely Technology face academic and research development as no civilization can survive without education and can't progress without research. We work with each applicant to prepare them for employment ready. Stuely Technology bridges the gap between employer and employer via industry or product specific selection and pre-employment training. Just for a quick look, I am sharing my screen and showing all the unique services which we Will Technology Private Limited family holds. So I'll be sharing my screen now. So I hope my screen is visible to you all. So for learning and teaching platform, we have Prayug, where we provide courses which are crafted with industry leaders for career advancement. Then we have internship and training program, which is True Intern, which offers hands-on internship programs, which are like integrated with training initiatives. And we have professional AI resume builder, that is Resume. Then we have our job portal, which is Navrojan. Then we have like for diverse study materials or courses, or if you want to find some good colleges or schools, we have Vidyapun for that. And we have personal and professional, like for personal professional growth through psychometric analysis, we have Sudakshita for that. For like research or any support with like resources or any expert guidance, we have Anushram for that. So these are all the unique services which Truly Technology Private Limited gives you. So we will start with our today's induction for data analytics and data science batch. So over to you, Saurabh sir. Okay, ma'am. Thanks. Hello, students. How are you? Fine, sir. Okay. So let's go with a little bit of introduction so that I can know you. My name. Okay. First of all, I want to tell you something about me. My name is Saurabh, and I have 7 years of experience in data analytics in Python, SQL, and Power BI. So I have taught more than 1,000 students while this journey. So okay. So Sneha, you can open your mic and you can tell me like your education background and your experience. Yeah, Sneha. Okay, your voice is not audible. Amit. Yes, sir. I'm Amit. I'm pursuing in graduation this year.
Now I'm working as a part-time as a MS Office trainer in a local institute. Okay, MS Office Yes. trainer. Okay, nice. Okay, Sita Sharma, you? Saurabh, Sita is in our team only. Oh, okay. Sorry, actually, I thought No, she's Purnima. in our team. Good morning. Oh, good evening, sir. Currently, I'm Good evening. pursuing my BSc. Okay. Okay, you have done BSc. Yes, sir. In which subject? Biology. Biology. Okay. So you just completed right now? Sir, second year is going on. Oh, it's going on. Okay. Sneha, you please message. I think we cannot hear you, Sneha. Am I audible, sir? Yes. Now you're audible. Okay, sir. Okay. I lived in Pune, Maharashtra, sir, and I graduated with my degree in computer application from Sikkim Manipal University Okay. Which year? in 2015, sir. 15. Okay. Mhm. Since then you are working. No, sir. Actually, I prepared for government exam, Mhm. not succeeded yet. Okay. Which government exam you were doing, by the way? Banking, you know. Oh, okay. Okay, no worries. You all can prepare for data analytics. Now it's very booming. Okay, these days. Yeah, it's booming these days a lot. All right, so let's start it. I will just give a little bit, not little bit. I will give an introduction today of the data analytics. Okay, like what is data analytics, what actually it is, and all details about it. Are you ready? Okay, Yes, sir. let's start it. Yes, sir. 1, 2, 3. Three. Okay, 3 students we have. Okay. I hope you are able to see my screen, right? Right, student? Can you see what I'm writing on the screen? Yes, sir. Okay. And everybody joined from the computer, right? Nobody joined from the mobile, right? Amit, Sneha, Purnima, all joined from the computer, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Amit, Amit, you turn on your mic. So am I audible now? Yeah. Yes, I'm joining from You joined from mobile, sir. mobile. Please join from the computer. Okay, sir, I can try it. Okay. All right. Okay. Everybody can see data analysis on my screen, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Just give me one minute. Wait. Just give me 1 minute.
Okay, so I'm writing here. A data and introduction to data analyst. Who are data analysts? Okay, before we move forward, I want to know that what knowledge you already have about data analyst. So what do you think? Purnima, what do you think? Who is data analyst? Uh, Sir, who analyze the data? who analyze the data? Analyzing means what? Mm, to check or to like Checking what? about data information, like some error, if there is any error, so they correct them Okay, watching the error in the data. That is the work of data analysis. and correct them. Okay, only this, nothing else. There are lot of works. Okay, okay. What about others? Amit, Sneha, what do you think data analyst is? So actually, data analysts collect data firstly, and the objectives should be clear. And then collecting data, then he or she cleared the data. The most first step actually. Uh-huh. Then, he or she do creating models and all. Then getting insight from that particular data and Yes, right. Very nice. creating visuals which Mm-hmm. actually helpful for end users. Yes, yes. Not end you. Yeah, end users are the by the companies, by the way. Yes, sir. Yes, correct. Very nice. Data insight is very necessary. Yeah. Data insight means like understanding the data and Yes, sir. understanding what actually the data is saying about the product or anything else. Right. Amit, you, what do you think? So it create visuals and insights and make a report about data to help any businessman or corporate to increase their Hmm. sales or Correct. any. Very nice. Very nice. इंसाइट बनाना, डेटा को पढ़ना, डेटा को समझना और उसके अंदर से बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालना, राइट। और बिजनेस को जिसका डेटा है, फॉर एग्जांपल इट इज अ डेटा ऑफ अ सुपरमार्केट। सुपरमार्केट का डेटा है कि कस्टमर ने क्या क्या खरीदा, ठीक है। तो उस डेटा को समझना और तो आप सुपरमार्केट के लिए एज अ डेटा एनालिस्ट यू आर वर्किंग। तो उस डेटा को समझना और उसमें बताना कि कस्टमर्स का बिहेवियर कैसा है, कस्टमर किस प्रोडक्ट को ज्यादा खरीद रहा है, किस प्रोडक्ट को कम खरीद रहा है, ठीक है, ताकि सुपरमार्केट का जो सेल्स है वो इंक्रीज हो पाए, ठीक है। दैट इज द वर्क ऑफ डेटा एनालिस्ट। दीज डेज मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स हैव अ लॉट ऑफ डेटा, ठीक है। आप कुछ भी सामान खरीदते हो तो उसका बिल बनता है, तो बिल ऑटोमेटिक उनके डेटाबेस में स्टोर होता है, ठीक है। एक पूरा एक्सेल की शीट होती है, लाइक एवरीथिंग गेट्स सेव्ड देयर, दैट इज द ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अ डेटा एनालिस्ट कलेक्ट्स, प्रोसेस, कलेक्ट करना, प्रोसेस करना एंड परफॉर्म स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑन लार्ज डेटा सेट। स्टैटिस्टिकल यहाँ पे क्यों लिखा है? स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? लाइक उस डेटा को, लाइक डूइंग सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑन दैट, राइट।
तो जस्ट बाय वाचिंग द डेटा यू कैन नॉट डिसाइड कि भाई हाँ ये वर्क कर रहा है, दिस प्रोडक्ट की कस्टमर टेकिंग अ लॉट, दिस प्रोडक्ट customer is not taking. So you cannot see the data and just tell. You have to do the calculation. On the numbers we decide. So that numbers comes only by the statistical analysis. Okay. They uncover trend, pattern, and insight that help organization make informed decision. हाँ, तो ट्रेंड पता चलता है कि किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा बढ़ी है, किस प्रोडक्ट की डिमांड घटी है, राइट। पैटर्न मालूम पड़ते हैं। और insights means all the information in that. Imagine a data analyst as a detective भी कहा जाता है, piecing together clues to solve a mystery but with the numbers and data. So like you have to be working as like a detective, और कह सकते हो कि एक तरीके से साइंटिस्ट बोल सकते हो कि डेटा के थ्रू ही आप पूरी जन्म कुंडली निकालोगे कस्टमर्स की, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। All right. So this is introduction to data. नेक्स्ट है हमारा ये इतने लंबे लंबे लाइन कौन कर रहा है ये सब, किसने बनाया ये सब लाइन। सर मेरे से गलती से हो गया होगा। ओके, चलो ठीक है, तो ऊपर जाएंगे। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिस्ट। एप्लीकेशन मतलब कि अप्लाई कहाँ कर सकते हैं डेटा एनालिस्ट, अपने जो स्किल्स होते हैं किस 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 जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट 1 मिनट, हाँ, वेयर वी कैन अप्लाई दिस। तो डेटा एनालिस्ट आर वैल्यूएबल इन वेरियस फील्ड। जैसे कि कौन सी फील्ड्स हो गई, सबसे पहली फील्ड्स है मार्केटिंग, जैसे मैंने एग्जांपल दिया सुपर मार्केट। पूर्णिमा, लीव योर माउस। या मार्केटिंग, तो लाइक मार्केटिंग मीन्स यू कैन से डिजिटल मार्केटिंग हो गया या एनी मार्केटिंग। तो वहां पे कैसे यूज करते हैं डेटा एनालिस्ट अपने आप को, कैसे वहां पे काम करेंगे, दैट इज एनालाइज कस्टमर डेटा टू क्रिएट टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन। ओके, तो फॉर इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे यू आर वर्किंग फॉर अ मार्केटिंग कंपनी और उनका प्रोडक्ट है किसी भी कंपनी का ऐड चलाना, ठीक है। ऐड कोई सा भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ऐड ऑफ प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन पाउडर। ठीक है, तो ये प्रोटीन पाउडर उनको बेचना है मार्केटिंग कंपनीज को। तो बेसिकली व्हाट दे डिड कि वो बहुत सारी लोकेशन पे गए, फॉर एग्जांपल लोकेशन यू कैन से दे गॉन इन द पार्क, पूल, जस्ट पूल, ठीक है। एंड ऑल्सो दे गॉन फॉर दी
you can say gym, right? तो और बहुत सारे कस्टमर्स इन डेटा इनका प्रोटीन पाउडर देखा, कह सकते हो आप 1000, और पूल में भी 1000 कम से कम लोगों ने देखा, और जिम में भी 1000, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक, which kind of person, which kind of target audience will buy this product? The person who visited a gym. Gym, yes, right. तो आप क्या करोगे एज अ डेटा एनालिस्ट? आपको तो पता नहीं होगी कौन कौन सी लोकेशन पे कंपनीज गई है, ठीक है? तो आपको डेटा दे देंगी वो 3000 पर्सन हैं, और लोकेशन ये 3 लोकेशन के 3000 पर्सन हैं। अब आप देख के बताओ कि कौन सी लोकेशन पे हमें नेक्स्ट टाइम जाना चाहिए, राइट? लाइक पार्क, पूल और जिम। तो एज अ डेटा एनालिस्ट यू हैव टू गिव द डिसीजंस कि हाँ भाई, दिस this location is working fine, so you like most of the people who are from gym, they are buying the product, ठीक है? मान लो वो आप बोल सकते हो कि out of 1300 people buy the protein, a pool में only 50 people buy it, a park में you can say only 30 people buy it, right? So by doing some calculation, you have to tell them that yes, we have to buy the product from the we have to next time when we do the second campaign, तो हमको all the gyms we have to go, right? तो ये तो खैर it was very easy to figure out, but most of the cases में इतना easy नहीं होता. By the data we can only get to know, right? Okay, next is what? Healthcare. Assess patient data to improve treatment plan. So what do you understand by this? Assess patient data to improve treatment plans. जैसे कहीं पे शुगर के पेशेंट्स ज्यादा हैं तो इंसुलिन बेचना है, तो वहाँ पे इंसुलिन उसको मतलब टारगेट करना है कि हाँ यहाँ पे ये ऐसे करने का हाँ, राइट। मतलब। सी इट इज ट्रीटमेंट प्लान्स, इट इज प्लान्स, मतलब कोई एक प्रोडक्ट नहीं है, एक 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 मेडिसिन नहीं है, इट्स प्लान मतलब जैसे कि पूरा एक तरीके से पैकेज, राइट? जैसे आपको पता है कि स्टूडेंट लाइक अ पेशेंट इज फ्रॉम, यू कैन से, डायबिटीज। हाँ, लाइक इट इज लाइक इज डायबिटीज, तो you will sell a package plan. So like you can also send insurance, you can also send fitness product, you can also send insulin product, right? And you can also send what we can say AccuCheck, sugar check करने वाली machine, right? All this time. So you have to understand the patient, कैसा patient है, उसके हिसाब से ही, क्योंकि अगर डायबिटीज वाले पेशेंट को डायबिटीज का अगर आप पैकेज बेचोगे तो देर इज हाई पॉसिबिलिटीज कि उनका आपका सेल्स ज्यादा होगा, राइट? अभी शुरू में लाइक बिफोर एनालिसिस क्या होता था, अभी एक बहुत सालों की बात नहीं है, अभी कम से कम 5 6 7 8 साल पहले ही क्या होता था कि जैसे फॉर एग्जांपल हर पेशेंट को हर चीज बेचा जाता था, ठीक है? अब जैसे आप टीवी में ऐड देखोगे तो आपको सब कुछ दिखाया जाएगा वहां पे, आपको साबुन हो गया, इट इज सोप, ऑयल, वट एवर, एवरीथिंग इज देयर, राइट?
तो इसमें क्या होता है ना कि कंपनी का बहुत ज़्यादा पैसा लगता है एडवर्टाइजमेंट में, और बहुत ज़्यादा सेल्स भी नहीं होती है। ठीक है। और आजकल क्या होता है आप बता सकते हो आजकल कैसे काम होता है? कंपनी के पास लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्स, लाइक रिसोर्सेज आर देयर, उनका बजट बहुत बहुत कम है। तो व्हाट दे डू नाउ, डू यू नो हाउ दे सेल द प्रोडक्ट? टारगेट ऑडियंस वाला चीज आ चुका है अब। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक क्रिकेटर है, राइट, इन्फ्लुएंसर है या क्रिकेटर है, तो ही विल सेल ओनली व्हाट, he will sell maybe something like music equipment, or you can say sports equipment, right? Sports, or you can say कि health related, health related foods, right? All these things. तो इस क्योंकि क्योंकि क्रिकेटर्स के टारगेट ऑडियंस वही होंगे जो इन सब चीजों में इंटरेस्टेड होंगे, राइट? यू वॉन्ट सी विराट कोहली डूइंग एड फॉर लाइक शैम्पू। कभी देखा आपने विराट कोहली को शैम्पू का ऐड करते हुए? स्टूडेंट यस और नो तो बोलो कम से कम। नो सर। नहीं देखा ना, दैट्स वाई। क्योंकि जैसी आप उसको शैम्पू के ऐड अगर दे भी दोगे तो बहुत ही कम सेल्स होगी उसके थ्रू। पर अगर उसको अगर कोई हेल्थ फूड वाले सप्लीमेंट अगर उसको अप्रोच करेंगे, और विराट कोहली इफ ही इज डूइंग द एड ऑफ हेल्थ फूड, देयर विल बी मोर सेल्स, राइट? ये चीज़ है। इससे क्या होता है कि कंपनीज का बहुत ज़्यादा पैसा सेव होता है। तो हेल्थ केयर में आप कह सकते हो कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट को समझ के और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान देना। फाइनेंसेस में कैसे काम होते हैं? फाइनेंस इंडस्ट्री में, नेहा प्लीज लीव योर माउस। आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड मैनेज रिस्क। जैसे स्टॉक्स बाय करते हैं कुछ लोग, डू यू बाय स्टॉक्स, एनीबॉडी? No, sir. ओके, कोई बात नहीं है। तो बेसिकली इट इज सेइंग कि आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, कि इन्वेस्टमेंट हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, राइट? तो फाइनेंस डिपार्टमेंट वो है कि विद एनालिसिस वी कैन इजीली फिगर आउट कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ की जा सकती है। मे बी इट कुड बी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या आप बोल सकते हो कि लॉट ऑफ इन गोल्ड्स, वट एवर, लॉट ऑफ फील्ड्स आते हैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और हाँ कहाँ पे रिस्क कम है और कहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है, राइट? ओके, रिटेल्स में कैसे यूज होता है? ट्रैक सेल्स डेटा टू ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री एंड इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस। रिटेल में इन्वेंट्री, व्हाट इज इन्वेंट्री, कोई बताएगा मुझे? सर स्टॉक। हाँ स्टॉक होता है, राइट, बट इन्वेंट्री मतलब किस चीज़ को इन्वेंट्री बोलते हैं? रिटेल क्या होता है? रिटेल, रिटेलर कौन होता है? हु इज रिटेलर? सर जो कंपनी के प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल करे उसे रिटेलर कहते हैं। यस, ये जो शॉपकीपर्स होते हैं वो कौन क्या होते हैं? रिटेलर ही तो होते हैं। हाँ। और जो उनकी शॉप होती है वो इन्वेंट्री ही तो होती है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि ट्रैक सेल्स एंड ऑप्टिमाइज
इन्वेंट्री मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर एक शॉप पे कोई एक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक रहा है, तो अगली बार से क्या करेगा, अगले हफ्ते से उस प्रोडक्ट को ला के खूब सारा रखेगा वहाँ पे, राइट। तो रिटेल इंडस्ट्री में ऐसे काम करता है। जिस चीज़ की मैंने यहाँ पे बोला ना अभी शुरू में कि ट्रेंड ट्रेंड समझने के काम आता है। तो ट्रेंड अगर आपने समझ लिया कि कौन सा डेटा बहुत ज़्यादा बिक रहा है, तो वो ऑलरेडी अपने पास ला के रख लो, ठीक है। इससे क्या होता है, कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होता है, क्योंकि आपके बहुत सारे कस्टमर आने वाले हैं खरीदने उसी प्रोडक्ट को, और आप हाथों हाथ बेच दो तो काम बन जाएगा, अदरवाइज वो कहीं और से भी ले सकता है, राइट। आपको पता है इस टेक्नोलॉजी पे हमारी एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी काम करती है। रिटेल तो नहीं है, ई कॉमर्स बोलूँगा। इस इन्वेंट्री अपनी ट्रैक सेल्स करके इन्वेंट्री ऑप्टिमाइज करती है। देयर इज अ वन कंपनी, हु इज दैट? है ही कितनी कंपनीज हमारे भारत में ई कॉमर्स की? फ्लिपकार्ट, अमेजन। अमेजोन, राइट। अमेजोन क्या करता है कि जिस प्रोडक्ट को उसको उसको लगता है अमेजोन के कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो चुके हैं, क्योंकि उनकी वेबसाइट पे तो पता लगता रहता है ना कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, तो वो काउंट रखते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो सेल्स होता है, फॉर एग्जांपल अमेजोन के एक प्रोडक्ट है कीबोर्ड, बहुत ज़्यादा सेल्स हो गया कीबोर्ड, तो वो लोग क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को के बहुत सारे पीसीज ऑलरेडी अपने मंगा के, और अमेजोन के वेयर हाउसेज होते हैं, डू यू नो, उनके खुद के वेयर हाउसेज होने लग गए हैं। हम यस। शुरू में तो लाइक दे वो मतलब सेलर से खरीद के डायरेक्ट बायर को बेचते थे, पर अब उनके खुद के इन्वेंट्री होने लग गई है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कोई बता सकता है? सर फास्ट डिलीवरी के लिए। हाँ, सेलर उनका है और पहले डायरेक्ट बायर को बेचते थे, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता था। जैसे सेलर क्या पता कोलकाता में हो और आपका बायर दिल्ली में हो, तो थोड़ा टाइम इसमें 2-3 दिन लग जाता था। अभी क्या करते हैं ये लोग, अमेजोन, अब इन्होंने रूट एक अपना अमेजोन का वेयर हाउस बना लिया, इन्होंने अमेजोन वेयर हाउस। तो प्रोडक्ट पहले यहाँ आता है बेसिकली। जैसे ही अमेजोन देखता है कि हाँ, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गेटिंग बायड बाय द कस्टमर, तो ये क्या करेगा कि 1000 कीबोर्ड ऑलरेडी अपने पास मंगा के रखेगा, और जैसे ही कस्टमर बाय करेगा तो उसको 1 दिन या 2 दिन के अंदर डिलीवर कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास रहता है वेयर हाउस में। वो सेलर से आने की जरूरत नहीं है कि एक प्रोडक्ट आएगा, ऐसा नहीं है। उनके पास रहता है और वो भेज देते हैं उसको, तो इससे कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा हो गया ना। 1-2 दिन टाइम लगा और सीधा पहुंच गया सामान। और इसको अमेजोन बोलती है, अमेजोन इस प्रोडक्ट को बोलती है अमेजोन फुलफिल्ड। सर्च कर लेना आप, फुलफिल्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के नीचे छोटा सा एक बैज लगाया था ऐसे, येलो कलर का, आप देख लेना। अमेजोन फुलफिल्ड कहते हैं उसको, राइट। कभी देखा आपने? यस सर। फुलफिल्ड होता है। फ्लिपकार्ट का मुझे आइडिया नहीं है, कोई किसी के पास फ्लिपकार्ट का पता हो टर्म क्या बोलते हैं फ्लिपकार्ट में? फ्लिपकार्ट भी ऐसा करता ही होगा वैसे तो। है किसी को आइडिया? नो आइडिया। ओके, ओके, फाइन। तो ऑल राइट, सो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। तो दीज आर द एप्लीकेशन। हम लोग यहाँ यहाँ वी कैन यूज अ डेटा एनालिसिस, जरूरी है।
राइट? तो फ्यूचर क्या है? लेट्स सी द फ्यूचर नाउ. ओके, द फ्यूचर इज ब्राइट फॉर डेटा एनालिस्ट. यस, आजकल तो बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि यू विल सी कि लॉट ऑफ ओपनिंग्स आर कमिंग अप, राइट? कितनी ओपनिंग्स है अभी लिंक्डइन पे? कोई चेक करके बताओ, हाउ मेनी ओपनिंग्स आर देयर इन फॉर द डेटा एनालिटिक्स पूरे इंडिया में? 1 lakh plus. वाह. Yeah, you can. I'm also watching. So it is showing. Yeah, lot of. It is showing 1,19,000 job in India, जिसमें कि 4,200 इज न्यू जॉब. ठीक है, लिंक्डइन पे तो इतना ही शो हो रहा है. ऑलराइट, तो बहुत ज्यादा जॉब्स हैं इसमें. So the future of is bright for data analyst with the explosion of big data. Companies need skilled data analyst to interpret this information. तो कंपनीज के पास बहुत सारा डेटा है, तो इसको एनालाइज करने के लिए दे नीड द एनालिस्ट. ठीक है, emerging टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, या मशीन लर्निंग will enhance data analysis capabilities. तो बेसिकली आपकी एआई और एमएल बहुत हेल्प करेगा हर तरीके से. डेटा उसको, आपको आपके डेटा और आपकी हेल्प करेगा एनालाइज करने में. मैं बताऊंगा कैसे कैसे यूज करना है इसको बाद में. और लीडिंग टू मोर प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव इंसाइट. ठीक है, अच्छी तरीके से इंसाइट निकालने के लिए आपकी एआई और एमएल भी अच्छी तरीके से आपकी हेल्प करेगा. आपको हेल्प लेना आना चाहिए, राइट? तो तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वी हैव टू बी वेरी गुड एट डेटा एनालिटिक्स. वाई? बिकॉज इन द कमिंग फ्यूचर आपको पता है एआई विल टेक ओवर एवरीथिंग, राइट? सो वी हैव टू बी वेरी स्किलफुल इन दिस डेटा एनालिसिस. वरना छोटा मोटा डेटा एनालिसिस तो एआई भी कर सकता है. और आई थिंक दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट दीज डेज, जिसमें एआई बस आपका डेटा लेगा और सारी चीज़ें एनालाइज करके वो आपको दे देगा. ठीक है, पर आपको थोड़ा और स्किलफुल होना है, ताकि जो आप काम कर सको वो एआई नहीं कर सके. ठीक है, मैंने एक प्रोडक्ट के बारे में सुना था कि इट इज़ अ ग्राफ, दैट it is a tool, AI tool, which creates the graph. You just have to upload the data and it will create the graph. ठीक है, और ऑटोमेटिक उसमें ग्राफ आपको बना के देता है. तो ऐसे टूल्स आने वाले हैं फ्यूचर में. बहुत सारी चीजें बनेंगी, बट वी हैव टू बी वेरी स्किलफुल. ठीक है, ताकि हम वी कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. ठीक है, और डेटा एनालिसिस के बाद आप धीरे धीरे अपना प्रोफाइल अपग्रेड कर सकते हो डेटा साइंस की तरफ भी, और फिर मशीन लर्निंग फॉर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भी, क्योंकि हम पाइथन तो लर्न करने ही वाले हैं. तो पाइथन से ही होता है ये सारी चीज़ें, राइट? ओके.
किसी को कोई क्वेश्चन है, दे कैन आस्क मी। आप लोग तो कुछ नहीं बोल रहे। थोड़ा बहुत क्वेश्चन। सर ये जो लास्ट लाइन है ना, ये लीडिंग टू मोर प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव इंसाइट, ये वाला थोड़ा समझा दीजिए ना। लीडिंग टू मोर प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव इंसाइट। हाँ, मतलब कि इसमें लिखा है कि emerging technologies like artificial intelligence and machine learning will enhance data analysis capabilities leading to more effective। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता ही है, वो बहुत ही अच्छा होता है, मतलब बहुत इंटेलिजेंट चीज होती है ये। और डेटा एनालिसिस वो आपसे अच्छा कर सकती है डेटा एनालिसिस, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सारे स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूला अंदर पड़े होते हैं। मशीन लर्निंग के सारे एल्गोरिथम ऑलरेडी अंदर उसके होते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज कर देता है वो। ठीक है। पर फिर भी अभी ऐसा टूल बना नहीं है कि जो सब कुछ एंड टू एंड सब कुछ करके दे दे आपका, सिर्फ जस्ट वॉचिंग एट डेटा। अभी भी हम लोगों को बहुत सारी कमांड लिखनी पड़ती है, तब जाके डेटा एनालाइज करता है वो, पर दैट इज नॉट कम्प्लीटली पॉसिबल। तो लीडिंग टू मोर प्रिडिक्टिव। प्रिडिक्टिव मतलब कि आपका डेटा, जैसे आजकल का डेटा देखा, मे बी 1 साल का 2 साल का डेटा देखा, और जैसी ग्रोथ हो रही है प्रोडक्ट की, फ्यूचर में भी प्रिडिक्ट कर सकता है कि हाँ, वो प्रोडक्ट कितना सेल होगा फ्यूचर में। ठीक है। तो ये भी फायदा होता है डेटा एनालिसिस का, कि हम लोग फ्यूचर का प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ, इतना ये प्रोडक्ट बिक सकता है फ्यूचर में। तो आप लोग, तो ब्रांड को हेल्प मिलती है कि हाँ भाई ठीक है, वो अपना रॉ मटेरियल उतना इकट्ठा कर रखे, इतना प्रोडक्शन बढ़ा के रखे, ताकि फ्यूचर की जो नीड्स हैं वो कैप्चर कर पाए। ठीक है। प्रिस्क्रिप्टिव इंसाइट। इंसाइट तो आपको पता ही है कि मतलब डेटा के अंदर से सारी जो इंफॉर्मेशन है वो निकाल सकता है AIML जो होता है। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करना है, हेल्प लेनी है AIML की, दोनों की। ठीक है। उनकी हेल्प लेके हमको एनालिसिस करना है। ठीक है। ओके सर। हम्म। बेसिकली होता क्या है कि जो जो डेटा है आपका, फॉर एग्जांपल डेटा है, इसको एनालाइज करने के लिए, ठीक है, इसको एनालाइज करने के लिए तो सिर्फ आपका लगेगा मेरे ख्याल से, इसको सिर्फ एनालाइज करने के लिए जो एनालाइज करता है उसको डेटा एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है। वो डेटा एनालिस्ट ही करता है डेटा एनालिसिस। वो डेटा एनालिसिस एनालिस्ट ही करता है। पर इस डेटा से अगर आपको प्रिडिक्शन करनी है, फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन करनी है, तो उसको बोलते हैं डेटा साइंटिस्ट। क्योंकि प्रिडिक्शन आप ऐसे ही नहीं कर सकते, प्रिडिक्शन के लिए लगती है बहुत सारी मैथमेटिक्स। ठीक है। और बहुत सारी मैथमेटिक्स, और उसमें लगते हैं प्लस मशीन लर्निंग की टेक्निक्स, एल्गोरिथम। तो वो डेटा साइंटिस्ट ही करता है। और आपको सिर्फ डेटा एनालाइज करना है, ग्राफ बनाना है, वो सिर्फ डेटा एनालिस्ट का काम होता है। राइट। हमारा तो ये कोर्स दोनों है, राइट, मिक्स, डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स दोनों है, राइट, हमारा ये कोर्स। यस सर। ये है। तो हम लोग शुरू में एनालिसिस सीखेंगे और बाद में धीरे धीरे प्रिडिक्शन की तरह चलेंगे, की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। ओके। तो थोड़ा सा आप स्टडी अच्छे से करना, क्योंकि अ, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपने ये स्किल सीख ली तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और जो बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, और जॉब्स करने के लिए लोग हैं नहीं। ठीक है। लोग इतने स्किलफुल है ही नहीं। अब आप कितने को जाके पूछ लो कि मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम बता दो, तो नो बडी विल टेल, एबल टू टेल कितनी एल्गोरिथम है और हर एल्गोरिथम क्या करती है। किसी को नहीं पता। किसी को पाइथन ही नहीं आती, तो कैसे एनालाइज करेंगे। और जॉब्स हैं बहुत सारी। तो बस ये स्किल्स का फर्क है। ठीक है। तो आप फटाफट सीखो, काम बहुत है, काम करोगे तो बहुत ज़्यादा मिलेगा काम। ओके। जस्ट 1 मिनट।
Okay. Next is, हाँ, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि क्या क्या करता है डेटा एनालिस्ट। जैसे कुछ लोगों ने बोला कि क्लीनिंग, प्रोसेसिंग, वो सब, तो ये वो सब यहाँ आता है। ऑलराइट, देखो, डेटा एनालिस्ट कंपोनेंट्स। तो की कंपोनेंट्स of the data analyst toolkit includes: first is data collection, gathering data from various sources। हाँ, आप डेटा एनालिस्ट यहाँ हो तो आपको कंपनी में अगर एनालिसिस से काम दिया है तो आपको डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा। तो आप लोग डेटा कहाँ से लेके आओगे? जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, और वो कंपनी आपकी क्या करती है कि वो कंपनी है टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, जैसे जियो, एयरटेल, तो आप डेटा किससे मांगोगे? कौन से डिपार्टमेंट से डेटा मांगोगे? एनी आइडिया? सर कस्टमर केयर। हाँ, कस्टमर, हाँ राइट, कस्टमर केयर से भी डेटा मांग सकते हो, राइट, कस्टमर सपोर्ट से भी मांग सकते हो, और आईटी इंडस्ट्री, आईटी जो आईटी डिपार्टमेंट है उससे भी मांग सकते हो, राइट, सेल्स डिपार्टमेंट से भी मांग सकते हो। तो ये सब डिपार्टमेंट से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा डेटा लेने के लिए। ओके, दैट इज कॉल्ड डेटा कलेक्शन, वेरियस सोर्सेस। अब है डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग क्या होती है? कि रिमूविंग एरर्स एंड इनकंसिस्टेंट डेटा। कभी कभी डेटा में क्या होता है कि जैसे आपका डेटा है जिसमें रोज एंड कॉलम है, 1 2 3, 1 2 3। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम दे रखा है, लोकेशन दे रखी है, नंबर दे रखा है उसका, और रिचार्ज अमाउंट दे रखा है कि कितने का रिचार्ज करवाया था। कभी कभी क्या होता है कि नेम होता है, हर कस्टमर का नेम दे रखा है। कभी क्या होता है कि लोकेशन नहीं दे रखी होती, कभी लोकेशन दे रखी होती है, कभी नंबर दे रखे होते हैं, कभी नंबर नहीं होते, कभी रिचार्ज दे रखा होता है, कभी कभी रिचार्ज मिसिंग होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज मिसिंग है, राइट। तो बीइंग अ डेटा एनालिस्ट आपका क्या काम होगा? रिमूविंग एरर्स एंड इनकंसिस्टेंसीज। अब देखो ये जो है, अब इस रो में भी प्रॉब्लम है क्योंकि आपका एक लोकेशन यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे भी एक रिचार्ज वैल्यू मिसिंग है, और यहाँ पे भी लोकेशन मिसिंग है। तो ये इनकंसिस्टेंसी आ गई ना डेटा में, तो आपको ये हटाना आना चाहिए, या किसी भी तरीके से इस डेटा को यहाँ पे फिल करो, जगह खाली जगह है जो उसको भरो कैसे भी करके। वो डेटा एनालिस्ट से काम है। ऐसे ही खाली खाली डेटा वाला यूज नहीं करना है फॉर एनालिसिस, आपको इसको साफ करना है डेटा का अच्छी तरीके से, ठीक है। अगर ऐसे का ऐसे डेटा ही आप डायरेक्ट यूज कर दोगे एनालिसिस में तो क्या होगी, कोई बता सकता है? अगर मैं ऐसे ही घटिया सा डेटा वहाँ पे ऐड कर दूं और एनालिसिस शुरू कर दूं तो क्या हो? हाँ, करेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा, विजुअल्स में भी राइट, प्रॉब्लम है। राइट, राइट। तो अगर आप कोई ग्राफ बनाते हो कुछ फ्यूचर प्रोडिक्शन के लिए तो अच्छी तरीके से ग्राफ नहीं बनेगा, और रिजल्ट जो आप चाहते हो वो रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी मुझे लगता है कि टाइम इज ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड। तो ये जो दो चीजें हैं, एनालिसिस एंड डेटा विजुअलाइजेशन, इज दैट ओके? ओके सर। ऑलराइट, ऑलराइट, सो हैव अ गुड डे डियर, ऑल ऑफ यू। नाइस टॉकिंग टू यू, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, ओके। थैंक यू थोड़ा, सर। या वेलकम। तो थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे अपना पाइथन लर्न करना। ऑलराइट, बाय बाय, हैव अ गुड डे। ओके सर। या Sir, when will our next session?